Hello class, welcome back. Welcome back to your science class. So class, in our last class, what we were doing, in our last class we have started our first chapter of science. We have started chapter 1 of science, that is food. Where does it come from? Food. Where does it come from? Fine. So अभी कल की क्लास में what we have done? Yesterday we were reading the concept with the help of a slide. Now today I am going to explain you it in a person that what is food, what are the ingredients, and from where does it come from. Fine. Now, I am going to jot down some of the words here on the board and then let me explain it to you. So, see, rice, wheat, banana, cheese, fish, chickens, butter. Now what are these? What are the things that I have written here? These all are the various food items that we consume in our day-to-day life. ठीक है? So what happened? We all eat chapati and rice, bread and butter, bread and jam, fruit, vegetable pulses, है ना? Vegetable oils, and some of us also eat fish, chicken, mutton, and all these things, eggs, meat. Fine. So anything which we eat to live is called food. So if anyone asks you what is the definition of food, so the food is anything that we eat, to live is called food. वो कोई भी चीज जिसको हम कंज्यूम करते हैं या जिसको हम खाते हैं, किस लिए? जीवित रहने के लिए, काम करने के लिए, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो क्या है? वो फूड है. अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो हम सब डेली कुछ ना कुछ खाते हैं, राइट? जब आप स्कूल में रहते हो और 4th पीरियड के बाद ब्रेक होता है आपका, 3rd पीरियड के एंड से ही क्या होना शुरू हो जाता है? भूख लगनी शुरू हो जाती है. मतलब क्या? आपकी बॉडी एनर्जी क्या करने लगती है? आपकी बॉडी एनर्जी डेफिशिएंट होने लगती है और उसे एनर्जी के लिए फूड की जरूरत होती है. तो व्हाट इज फूड? फूड इज एनीथिंग दैट वी ईट टू लिव. ठीक है? एनीथिंग दैट वी ईट टू लिव इज व्हाट इज फूड. ऑल्सो food is a substance eaten by us to do work, grow, maintain our body and remain healthy. Apart from this definition, food is what? Food is a substance. Food is what? Food is a substance eaten by us to do work,
grow, maintain our body and remain healthy. Okay. So here I have added one more part. Fine, let us see. So what is food? Food is a substance eaten by us to do work. What are the things mentioned here? To do work, to grow, maintain our body and remain healthy. And to remain healthy. ठीक है. खाना क्या है, भोजन क्या है? अगर हम फूड को बहुत सिंपल शब्दों में समझें तो भोजन क्या है? वो कोई भी पदार्थ, वो कोई भी सब्सटेंस जो हम कंज्यूम करते हैं, किस लिए कंज्यूम करते हैं? ग्रो करने के लिए, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, है ना, एंड हेल्दी रहने के लिए. छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग अभी खुद छोटे हो, तो जो क्लास 2, 1, 2 UKG वाले बच्चे होते हैं तो उनको उनकी मम्मा समझाते हैं ना कि बेटा ड्रिंक मिल्क ट्वाइस अ डे, है ना, मिल्क पियोगे तो स्ट्रांग बनोगे. इस तरह के सेंटेंसेस आप सबने सुने होंगे. फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर ग्रोथ. फूड इज वन ऑफ द नेसेसिटी. ठीक है. नाउ फूड इज व्हाट? नाउ वन मोर लाइन इज देयर. आई एम गोइंग टू जॉट इट डाउन ऑन द बोर्ड. दैट फूड इज व्हाट? Food is like a fuel for our body. Food is what? Food is like a fuel for our body. Just as petrol runs a car, ठीक है? Just as the petrol is a fuel for car, similarly food is a fuel for us. अब जैसे पेट्रोल में, स्कूटर में, स्कूटी में, बाइक में जब तक आप पेट्रोल नहीं डालते वो नहीं चलेगी. होता है ना कभी कभी. क्या होता है जब आप अभी आप तो बाइक नहीं चलाते होगे, बट मम्मी डैडी को देखा होगा आपने या भैया दीदी को देखा होगा, स्कूटी से जाते हैं, स्कूटी में पेट्रोल कम है और अगर पेट्रोल वो खत्म हो जाता है तो स्कूटी आगे नहीं चल सकती. क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि उस फ्यूल से स्कूटी को क्या मिल रही है? एनर्जी. एनर्जी किस लिए? टू मूव. सिमिलरली फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो. वाई फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस? बिकॉज food act as a fuel for our body. Food act as a fuel for our body. Without fuel or without food, we cannot move, we cannot sustain our life, we cannot live. So that's why food is very important. Fine, food is what? It's very important for our life. Now one more thing. We must eat food to stay alive. Fine. What happened? We must eat food. For what purpose? To stay alive. So here we came across few more points related to food. Fine, let me jot it down on the board. Fine, chalo. Now the next point is that I have to jot down on the board is food is fuel for our body. This is the first point. Consider it as first point. Now next is food is fuel for our body. ठीक है. फूड क्या है? हमारे शरीर के लिए फूड क्या है? फ्यूल की तरह है ना. फूड हमारे बॉडी के लिए किस तरह से है? फ्यूल की तरह है. नाउ द नेक्स्ट इज we should not waste food in any way. We should not waste food in any way. हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से. अच्छा, वन मोर थिंग. यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं फूड की, हमने अभी तक जो बात की वो सिर्फ ह्यूमन के रिस्पेक्ट में की, राइट? बट यू नो दैट it is not only the human being who eat food.
In fact, all the animal eat food to live. It's not only the human being who eats food. खाली human being food नहीं लेते, सारे एनिमल सरवाइव करने के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें फूड की जरूरत होती है. कोई भी एनिमल है, उसे जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है, उस व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जरूरत है किस चीज की, फूड की. वेरी गुड, लेट अस मूव अहेड. नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट फूड. कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी, व्हाटसोएवर द लिविंग थिंग इज, कोई भी लिविंग थिंग विदाउट फूड वो सर्वाइव नहीं कर सकता. प्लांट की भी बात करें तो प्लांट भी तो फूड बनाता है. क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, कल पढ़ा था हमने. प्लांट भी जो फूड बनाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट फोटोसिंथेसिस. राइट, वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस. फाइन, वी विल रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस वंस अगेन as we move ahead with the chapter. Fine. Now class, let us recall all this topic once again, then we will move ahead. So food is fuel for our body. We should not waste food in any way. Food should not be get wasted in any way. What is food? The topic of the day is food. So the question is, what is food? So anything that we eat to live, anything that we eat to live is called food. A substance eaten by us to do work, grow, maintain our body and remain healthy. What is food? Food is a substance eaten by us to do work. It is eaten by us for what? To do work. Grow, maintain our body and to remain what? And to remain healthy. ठीक है? Fine, this much is clear. So now I am going to erase the board. Okay, if you want, you can take the screenshot of this point. Otherwise, in online classes, I will provide you the notes. So now you guys are in class 6 now. अभी पिछले साल तक तो EVS पढ़ते थे, but this year you have to read the science. है ना, तो साइंस की कॉपी वैसे ही ईवीएस की तरह ही कॉपी बनेगी, इंटरलीव कॉपी जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, ओके. मूविंग अहेड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वैरायटी इन द फूड. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? वैरायटी इन द फूड. ठीक है, मतलब फूड की डिफरेंट वैरायटी. अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिटन फ्यू वर्ड्स देयर. कौन कौन से वर्ड थे? चपाती, राइस, पल्सेस, व्हीट, मटन, लैम्ब, टाइप ऑफ थिंग. ठीक है. नाउ सम ऑफ देम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल. Some food item we obtain from animal, some we obtain from plant. So what are the two major sources of food? Plant and animal. Fine. So here variety of food. देखो, we eat different kind of food at different time on different days. What we do, we eat different type of food at different time and different days. Fine. We eat different type of kinds of food. At different time and different days. On different days. अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात कही गई है? यहाँ पे ये बोला गया है कि हम ऐसा नहीं होता कि हम एक जैसा ही खाना थ्रू आउट द ईयर खाते हैं. ऐसा नहीं होता. We don't eat the same food for whole of the year.
वी कीप ऑन चेंजिंग आवर फूड हैबिट्स, राइट। हम क्या करते हैं, अपनी फूड हैबिट को हम क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। नाउ व्हाट डज इट मीन? कहने का मतलब, सपोज इफ इट इज माई बर्थडे टुडे, इफ इट इज बर्थडे, then what I will eat? If it is Holi today, then what I will eat? If it is Deepavali today, then what I will eat? Or if it is Navratri today, if suppose Navratri is going on, then what we will eat? If it is winter, then what we will eat? And in summer. अभी जब मैम ने ये सारी चीजें जॉट डाउन की, बर्थडे, होली, दीपावली, नवरात्र, विंटर, समर, जब मैंने ये सारी चीजें जॉट डाउन की, तो इनसे रिलेटेड फूड आइटम आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ गए होंगे कि इस दिन हम क्या खाते हैं, इस दिन हम क्या खाते हैं, या विंटर्स में हम क्या खाते हैं, राइट। Let us talk about it. Now, we don't eat cake daily. Do we eat cake daily? Or do we eat gujiyas daily? Or do we eat aloo ka paratha daily? No, we don't do so. If it is someone's birthday, if it is someone's anniversary, or if it is someone's, inauguration party or anything like that, then what we do? At that time, we eat cake. Now, if it is Holi, then अगर होली है, फिर होली है, होली अभी बीती है, आपको पता है, we eat पापड़, चिप्स, गुजिया, right? गुजिया, okay? दीपावली है, देन व्हाट वी डू? अगर दीपावली का टाइम रहता फिर हम क्या कहते हैं? लेट मी टेक अनदर चॉक। दीपावली है, फिर हम क्या करते हैं? अगर दीपावली है तो हम स्वीट्स खाते हैं, राइट। वी ईट स्वीट्स, लड्डूज एंड काजू कतली एंड थिंग्स लाइक दैट। नवरात्र। नाउ व्हाई आई हैव रिटन नवरात्र देयर? क्योंकि नवरात्र कौन से डेज होते हैं? फास्टिंग के डेज होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल दे के फास्ट ड्यूरिंग नवरात्रि। तो नवरात्र में हम क्या खाते हैं? सिंपल फूड, राइट। विदाउट ऑनियन, विदाउट गार्लिक, वी ईट सिंपल फूड, ठीक है। तो नवरात्र में वी ईट सिंपल फूड। नाउ सीजन, विंटर एंड समर। अभी भाई विंटर है या समर है, ये जो सीजन चल रहा है, बिगनिंग ऑफ समर यू कैन से। विंटर में हम क्या खाते हैं? वी ईट आलू पापड़, आलू की पूड़ियाँ, मटर की सब्जी, कैप्सिकम की सब्जी, वी ईट ऑल दिस थिंग। तो टी, कॉफी, है ना। सो वी ईट peas, potato a lot, cabbage. In summer, mango. तो अभी हमें ये देख के पता चला कि हम एक जैसा खाना थ्रू आउट नहीं खाते हैं। वी ईट डिफरेंट फूड एट डिफरेंट टाइम ऑन डिफरेंट डेज। अलग दिन पे अलग खाना, अलग तरह का खाना हम खाते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल वेराइटी ऑफ फूड। अच्छा, वेराइटी ऑफ फूड नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन फेस्टिवल्स एंड सीजन, इट ऑल्सो समटाइम डिपेंड्स ऑन अवर मूड। फॉर एग्जाम्पल, इफ टुडे आई वॉन्ट टू ईट चाइनीज, मेरे को आज मुझे आज नूडल्स खाने का मन है, तो वो भी क्या है? खाने की एक वैरायटी है। आज सपोज करो आपको क्या खाने का मन है? आपको आज पिज्ज़ा खाने का मन है, इटालियन फूड, तो वो क्या है? वो भी आपका क्या है? एक वैरायटी है फूड की। मुझे आज साउथ इंडियन फूड खाने का मन है, वो क्या है? वो भी एक वैरायटी है। तो दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड। Different people eat different type of food according to their habits, lifestyle, taste and availability. Important thing.
डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अलग अलग लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, अपनी आदतों के अनुसार, ठीक है, लाइफस्टाइल के अनुसार, टेस्ट के अनुसार और अवेलेबिलिटी के अनुसार लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। फाइन। नाउ हैबिट्स। अब क्या बात आती है, यहाँ पे दो टर्म यूज हुआ, टेस्ट एंड अवेलेबिलिटी। एक तो टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि सपोज मुझे डोसा खाने का मन है या मुझे पिज्जा खाने का मन, तो ये मेरा टेस्ट है। अवेलेबिलिटी, जो खाना अभी मौजूद है आसपास। आप सबने डिस्कवरी पे वो शो देखा होगा, मैन वर्सेस वाइल्ड, आई गेस देखा होगा, राइट। मैन वर्सेस वाइल्ड देखा नहीं होगा तो सुना तो जरूर होगा, और अगर सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, तो प्लीज देखो। मैन वर्सेस वाइल्ड में व्हाट दैट मैन बेयर गिव्स, व्हाट ही डू, ही वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस इन रिमोट प्लेसेस जहाँ पे ना वाटर होता है ना फूड होता है, एंड व्हाट ही डज देयर, वो वहाँ पे स्टे करेगा एंड ही यूज टू इट whatever the thing अवेलेबल देयर। सिमिलरली अगर हम पोलर रीजन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अगर पोलर बियर्स हैं तो पोलर बियर्स ग्रीन नहीं खाते, कुछ ग्रीन स्पिनच या ग्रीन ग्रासेस वो नहीं खाते। व्हाट दे ईट फिशेस। वहाँ पे पोलर रीजन में जो फिशेस आती हैं वो उसको हंट करके उसको खाते हैं, वहाँ के लोग भी वही खाते हैं। व्हाट दे वेयर द सेम टाइप ऑफ, they wear the same clothes जो वहां पे मिलते हैं। अवेलेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। अगर फूड अवेलेबल ही नहीं होगा तो हम खाएंगे कैसे, है ना। तो फूड, वेराइटी ऑफ फूड डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी, ठीक है। नाउ सम पीपल ईट मेनली फूड प्रिपेयर फ्रॉम व्हीट। कुछ लोग होते हैं जो कि व्हीट ओरिएंटेड होते हैं, जिनको व्हीट का खाना, आटे से बने हुए, गेहूं से बनी हुई चीजें बहुत पसंद है, उन्हें चपाती बहुत पसंद आती है, नूडल्स पसंद आएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को पल्सेस पसंद आती हैं और फ्रूट। ऑन द अदर हैंड सम पीपल ईट मेनली राइस प्रिपरेशन इन द फॉर्म ऑफ बॉइल्ड राइस, बिरयानी, डोसा, इडली, दीज थिंग दे ईट, पुलाव, दे ईट ऑल दिस थिंग। नाउ सम पीपल दे ऑल्सो ईट एग, मीट, मटन, chicken. These are what? They are what? They are non-vegetarians, right? Now, see, particular variety or preparation of food served as a part of meal is called a dish. What is a dish? अगर किसी खाने को हम पर्टिकुलर तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या है, डिश होती है, ठीक है। And any of the food of the substance which are combined to make a particular dish are called ingredient. Now यहाँ पे दो टर्म आए, dish and ingredient. Two terms are there. First one is dish and the other one is ingredient. Dish क्या होती है, कोई भी फूड जिसको हम एक पर्टिकुलर तरीके से प्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, we call it dish. जैसे कि राजमा चावल एक डिश है, इडली सांभर एक डिश है, पिज्जा अपने आप में कंप्लीट डिश है। ना अब ये जो सारी चीजें हैं ये किससे बनती हैं, ये सारी चीजें बनती किससे हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस से, और उन्हें हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट इंग्रेडिएंट। उन चीजों को, उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट इंग्रेडिएंट, ठीक है। फाइन, सो आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड नाउ। Okay, so I have erased only this part of the board. Now class, see one thing. अभी दो टर्म हमने देखी, first is dish and the other one is ingredient, ठीक है, dish and ingredient, ठीक है। अब जैसे कि डिश क्या हो जाएगी, बॉइल्ड राइस, सपोज करो राइस, यहाँ पे हमने लिखा डिश, यहाँ पे लिखा
इंग्रेडिएंट, डिश या फूड आइटम, और यहाँ पे क्या लिखा, मेजर इंग्रेडिएंट, मेजर इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हमने लिया रोटी। रोटी इज मेड अप ऑफ, रोटी किससे बनती है? सबके घरों में रोटियां, ऑलमोस्ट सबके घरों में रोटियां डेली बनती होंगी। रोटी किससे बनती है? आटे से, व्हीट से। रोटियां व्हीट से बन रही हैं, ठीक है ना। तो अब रोटी बनाने के लिए मेजर इंग्रेडिएंट क्या है? व्हीट फ्लोर या आटा, फ्लोर या आटा एंड वाटर। क्या कुछ और चाहिए होता है? फ्लोर या आटा, ओके, सो फ्लोर या आटा एंड वाटर, ठीक है। अब रोटी अगर हम बना रहे हैं तो उसमें दो चीजों से बना रहे हैं, या तो आटे से, आटा और पानी को मिला के, है ना। आटा और पानी को मिला के मम्मा क्या करती, डो तैयार कर लेती है, आफ्टर दैट व्हाट शी डू, देन शी रोल्ड इट विद अ रोलिंग पिन एंड फायर पे उसे चढ़ा देते हैं, राइट। तो रोटी, अब देखो डिश इज व्हाट, फूड आइटम इज रोटी एंड इंग्रेडिएंट, जिन चीजों से वो फूड आइटम तैयार हुआ वो क्या है? आटा एंड पानी। जस्ट आटा एंड पानी सफिशिएंट टू मेक व्हाट, जस्ट आटा एंड पानी सफिशिएंट टू मेक roti, fine. So the various food item which we eat daily are usually made up of more than one material. The various food item, जो अलग अलग तरह के food item हम खाते हैं डेली, वो more than one material से क्या होते हैं? बनते हैं। This will become more clear in the coming example. See, rice, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ राइस की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ राइस की, अगर हम राइस की बात करें तो राइस हम किससे बनाते हैं? राइस को अगर हमें बनाना है तो रॉ राइस एंड वाटर, कच्चा चावल और पानी, इसकी मदद से हम क्या करते हैं? चावल तैयार कर लेते हैं। तो सी, राइस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कच्चा चावल और पानी। तो ये हो गई डिशेस, ये हो गए उसके मेजर इंग्रेडिएंट। यहाँ पे क्या देखा हमने? मेजर इंग्रेडिएंट, जो कि किसी पर्टिकुलर डिश को बनाने में हमें चाहिए होता है, ठीक है। नाउ सम फूड आइटम आर हाउएवर मेड बाय यूजिंग मेनी इंग्रेडिएंट। अभी तो जो हमने दो एग्जांपल देखा, हमने देखा दैट इज दैट इज रोटी एंड चावल, तो वो तो खाली 2 इंग्रेडिएंट से बन रहा था। बट अभी जो आगे हम एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल खीर। अब खीर में तो ढेर सारे इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे आपको, है ना। खीर क्या है? अगेन डिफरेंशिएशन इज इम्पोर्टेंट। खीर इज अ डिश एंड इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? राइस, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, शुगर, है ना। 4 आइटम्स हुए ना, राइस, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स एंड शुगर। 4 आइटम आपने डाले तो उससे क्या तैयार होता है? आपका खीर तैयार होता है। अगर हम बात करें फिश करी की, देन फिश करी के लिए क्या क्या जरूरी होता है? फिश, मीट, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड वाटर। फिश करी के लिए। इडली के लिए राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। तो हम क्या देख रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर डिश को तैयार करने के लिए हमें क्या लग रहा है? किसी पर्टिकुलर डिश को तैयार करने के लिए कभी हमें 2 और कभी मोर देन 2 हमें क्या लग रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, राइट। इतनी चीजें सबको समझ में आ गई? ओके क्लास, तो आज हमने देखा फूड, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वैरायटी ऑफ फूड और इंग्रेडिएंट। तो अभी हम आज इंग्रेडिएंट तक पढ़े हैं। वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। अभी इंग्रेडिएंट को वी विल कैरी ऑन इन द कमिंग क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। And keep reading your NCERT book. I will keep giving you lectures here in online class, and we are planning to start your Microsoft Teams classes also as soon as possible. So okay kids, that's it for today, and now ma'am will meet you in the next class. Chalo, bye bye.